Hello and a very warm welcome, dear viewers. Enjoy the lush greenery and smell the sweet flowers of Indraprastha Horticulture Society members and other gardening enthusiasts. Good morning, friends. This is Dr. Anita Sehgal from A4 Nirman Vihar. Come walk with me through my terrace garden. Thank you so much, IHS, for introducing me to this wonderful world of horticulture. A special thanks to Mrs. Krishna Gupta, who during the lockdown opened her heart and home to all of us to get as many plants as we wanted. No nurseries, no shops were open. This magnanimous lady helped us all. Thank you so much. Special thanks to Mrs. Rachna Jain for organizing such wonderful and insightful webinars with the best experts in horticulture. She has given us so much knowledge how to grow plants organically, recycle waste and protect the environment. Thank you so much, Rachna ji. See the beautiful crown daisies, the nasturtiums, the yellow and orange calendulas. Look at the regal dahlias. This one is as big as 10 inches in size. The salvias, the white stalks, the stately bamboo, the colorful dianthus, the chrysanthemums, verbena, the stately sweet williams, the paper flowers, the antirrhinum, the exotic and fragrant nargis from my native hometown, Amritsar. And look at the abundant strawberries. The pansies, so beautiful, so colorful. The lovely petunias in full bloom. The bougainvillea. The pride of my garden, the Masembra, also called the ice plant. Hi, I'm Amita Bhargav, an old member of IHS. Gardening has been my hobby since childhood, which turned into my passion with time and learning. Today I'm showcasing you my terrace garden, which comprises of fruit plants, flowers, vegetables, foliage, water garden, bonsais and many more. I welcome you all to enjoy the glimpses of my terrace garden.
नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मोरोरा, ईस्ट दिल्ली गायनी से। यूँ तो गमलों में फूल सभी उगाते हैं और वे सुंदर भी होते हैं, पर गमलों में सब्जियां उगाने का अपना एक अलग ही मज़ा है। मैंने गमलों में, टूटे हुए टब्स में, ग्रो बैग्स में बहुत सारे सब्जियां उगाई हैं। बैगन, पालक, मेथी, टमाटर, गाजर, मूली, गोभी, पत्ता गोभी, सभी तरह की। जब ये करेले, लौकी, तुरई की बेलों में जब ये फल आते हैं और उनको देख के अपनी तबीयत वैसे ही हरी हो जाती है। इन पौधों के पोषण के लिए मैं खुद ही कंपोस्ट बनाती हूँ। इस बहाने मैं अपने पर्यावरण की सुरक्षा करती हूँ और वातावरण को शुद्ध रखती हूँ, और इससे इन पौधों को पोषण भी बहुत मिलता है और ये सब्जियाँ बहुत स्वादिष्ट भी होती हैं। Hello friends, welcome to my garden. Myself Seema Mittal, and this is my garden. Just have a look. This is Mirchi Gudhel. I'm Mrs. Shobha Jain from 115 Rishabh Vihar, a member of Horticulture Society, Indraprastha Horticulture Society. This is my celery plant. Celery is rich in vitamin A, K and C. It is low in glycemic index and has steady slow effect on our blood sugar level. This is Latin basil, or you can say sweet basil. It provides micronutrients to our diet such as calcium, and it is rich in vitamin K. The antioxidant present in it help reduce stress. It is my sage plant. It is rich in vitamin K and minerals such as zinc, magnesium and copper. Antioxidant present in it help fight cancer cells. This is my bok choy plant. It is excellent source of vitamin A. A cup of bok choy leaf, they have 60% of our daily vitamin A requirement. Vitamin C and K, E are also present in it. The antioxidants present in it have cancer cell killing property, and it is rich in selenium. Then parsley, this is rich in vitamin A, K and C. It has minerals such as calcium, iron, magnesium and potassium. Antioxidants present in it help to reduce blood sugar level and improvement in pancreatic function. This is thyme is rich in vitamin A and C. It is a rich source of minerals such as copper, iron and manganese. Oil from its leaf help in curing cough and also boost immunity. This is my oregano plant. It is
It has antibacterial agent that fight infection. Antioxidant, it is rich in antioxidants too, and vitamin A, K, E, and minerals such as magnesium, iron, and calcium.
Sonal Seth. Uh, Gardening has become my passion nowadays just because of the We Create group which our society has formed, where all the garden lovers are participants. A lot of inspiration has come through it and a lot of learning as well. I do post my little experiences. To start off with, I started with money plants and then little bit of seedlings for the flowers and then for the veggies as well. My experiences have been with the cabbages, with the peas, with tomatoes, with ajwain, tulsi, everything started started. Flowers like mogra, like roses. I'm learning a lot of new names as well. Learning how the companionship works with each other. Learning how, there are few plants which are insect repellents, and there are few which require sunlight, daylight, frost, everything learning little by little. It's been only 6 months for me to start off with, but I'm proud of myself that I get a lot of satisfaction. I burst out my stress. I come back home early just to give them water them, to give them manure, fertilizer, learning day by day. But it's a good experience. Like, one of my failure was strawberries as well. Delhi is not the right place to grow the strawberries, but first time when I started, they didn't grow well. Then again, I put a lot of efforts. Now see, so proud of them that they have come up. I love when the bugs come, when bees they come here. I love them and learned how to prepare good manure for them, like how we grow our kids. That's how I'm trying to grow all these plants with me. There are cabbages, petunias, then a lot of like spinach is there. Dahlia is also there. A lot of plants. I've also started composting, which is a natural bioactivity of gardening. So all the dry leaves, all the dry waste, wet waste of the kitchen goes into the composting, and also preparing enzyme for the cleaning of the household, bathrooms, all things. So everything has multiplied, given us, go green, save environment, eat fresh, be organic. That's what the whole aim is all about, the gardening. Thank you. हेलो, हम आज बनाने वाले हैं कोकिडामा। कोकिडामा एक जापानीज आर्ट है जिसको हम हैंगिंग मॉस भी कहते हैं। जिन जगहों पर जगह कम होती है, जहाँ पे आप प्लांट्स रख नहीं सकते हो, हैंग कर सकते हो या ज्यादा वेट नहीं ले सकते हुक्स, तो फिर वहाँ पे हम कोकिडामास लगाते हैं। यहाँ मेरे पास बालकनी स्पेस कम है तो मैंने कोकिडामास हैंग किया है। कोकिडामास को हम ऐसे डेकोरेटिव पीस की तरह रख भी सकते हैं। इट इज एक्चुअली creating a sculpture with live plants. So let us create one कोकिडामा today. कोकिडामा को हम ऐसे ये क्लोरोफाइटम ले सकते हैं, बड़ा इजीली ग्रोइंग प्लांट है, ज्यादा केयर नहीं मांगता। मनी प्लांट्स, वेरीगेटेड मनी प्लांट्स, ऑक्सीकार्डियम्स ये ले सकते हैं, या सकुलेंट्स का जैसे मैंने ये बर्डनेस सेंसेवेरिया का बनाया है। तो लेट अस स्टार्ट विद क्लोरोफाइटम प्लांट। कोकिडामा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये एक रस्सी ली है। रस्सी के हम ऐसे हमने रस्सी ली डबल, उसको हमने कट किया। और अब इसके बीच में हम एक नॉट लगाएंगे। और अब हम इसको एक राउंड बास्केट लिया, उसमें हम ऐसे फैला देंगे, चारों कॉर्नर्स अलग अलग। इसके ऊपर अब मैंने मॉस को गीला करके रखा हुआ है, ये मॉस है, इसको निचोड़ के भिगो के रखा है, इसको फैला देंगे टोकरी पर। इसके ऊपर अब हम ये प्लांट निकालेंगे। मेरे प्लांट्स ने रूट्स छोड़ रखी है, तो इसका हम एक्स्ट्रा सॉइल निकाल देंगे और एक्स्ट्रा रूट्स हैं उनको हम कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा रूट्स हैं, इन्हें हम कट कर देंगे। अब मैंने सॉइल तैयार किया है, उसमें गार्डन सॉइल है, थोड़ा सा कोकोपीट है क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है, और गोबर की खाद है, थोड़ी सी नीम खाद है।
मॉस के ऊपर अब हम इसको स्प्रेड करेंगे और फिर हम इसको फिर से मॉस से कवर करेंगे। अब ये जो हमारी रस्सियां थी इनसे हम इसको टाई कर देंगे टाइटली। और डालेंगे ये हमारा कोकोडामा रेडी हो गया। इसको हम and here it is.
नमस्कार जी, मैं नीना सेठी बोल रही हूँ। ये मेरी छोटी सी बालकनी है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। मैंने छोटी सी में बहुत सुंदर सुंदर प्लांट लगा रखे हैं, बोनसाई लगाए हुए हैं। मैंने अपनी छोटी सी बालकनी को सुंदर बनाया हुआ है जो मैं आप सब लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। इसमें कैक्टस लगा रखे हैं, सकुलेंट्स लगा रखे हैं मैंने। अमरूद का पेड़ है जिसमें बहुत मीठे मीठे अमरूद आते हैं। ऊपर मैंने सकुलेंट की ट्रे लगा रखी है जिसके अंदर तरह तरह के सकुलेंट्स लगा रखे हैं खंगर में मैंने। नेक्स्ट मैंने सकुलेंट की ट्रे बनाई हुई है जिसमें मैंने डक बैठा रखी है। नेक्स्ट मेरा कैक्टस का है। कैक्टस जो है इसमें बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्लावर आते हैं सर्दियों में और ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये मेरा स्टैंड है जिसमें मैंने छोटे छोटे बोनसाई लगा रखे हैं। ये मेरा बड़का बोनसाई है, ये फाइकस है, डीवीडी प्लांट है, ये भी डीवीडी प्लांट है। इसको मैं बोनसाई बनाने के प्रोसेस में लगी हुई हूँ। ये अनार का पेड़ है मेरा जिसमें छोटे छोटे अनार भी आते हैं। ये भी बोनसाई बना रही हूँ। ये मेरी ट्रे है, जंगल की ट्रे जिसमें मैंने डक बैठा रखी है। नदी में डक घूम रही हैं, बटरफ्लाई है, पेड़ पे चिड़ियां बैठी हैं। ये मेरे सकुलेंट्स प्लांट है छोटे छोटे। ये मेरा फाइकस का पेड़ है। ये छोटा बोनसाई बना रखा है मैंने, बहुत ही छोटा सा। ये मेरा पिलखन का पेड़ है। पिलखन जो बहुत सुंदर, बड़े सालों से बना रही हूँ इसको बोनसाई। ये है मोरैया, मोरैया का पेड़ है। इसमें बहुत सुंदर से फूल आते हैं खुशबूदार। इसको मैं बोनसाई बना रही हूँ। ये जेड का पेड़ है। साथ में मैंने छोटे छोटे कैक्टस सकुलेंट्स के छोटे छोटे बना रखे हैं जो मैं अंदर भी टाइम होने पे अंदर भी रख लेती हूँ अपने घर में। ये मेरा खिरनी का पेड़ है। ये 25 साल पुराना खिरनी का पेड़ है मेरा। ये मैंने फिर छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हैं साथ में। ये मल्टी ट्विन ट्रंक है, ये मेरी ट्विन ट्रंक है फाइकस की। ये 25 ईयर ओल्ड है। ये पिलखन का बोनसाई बना रही हूँ मैं। ये खंगर के ऊपर मैंने बोनसाई लगा रखा है फाइकस का। साथ में बोगनविला है। बोगनविला में बहुत सुंदर फूल आ रहे हैं इस टाइम पे। साथ में मेरा बॉक्सवुड का पेड़ है जिसको मैं बोनसाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ। साथ में मेरा अपर कलेरिया है, बोगनविला है। बोगनविला 30 ईयर ओल्ड है। ये मेरी छोटी सी बालकनी, खूबसूरत बालकनी बना रखी है मैंने। ये देखिए मैंने इसमें सीजनल फ्लावर भी लगा रखे हैं। कमरक का पेड़ लगाया हुआ है, एलोवेरा लगाया हुआ है, करोंदे का पेड़ लगा रखा है, तुलसी जी लगा रखी है, मीठा नींबू लगाया हुआ है। ये मेरी छोटी सी बालकनी मैं आप सब लोगों को दिखा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।
हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि गुप्ता, मेंबर ऑफ इंद्रप्रस्थ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, अपना अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरा ये गार्डनिंग का सफ़र पिछले साल IHS फ्लावर शो से हुआ। फ्लावर शो की खूबसूरती को देखकर मैं भी IHSA की मेंबर बनी। यहाँ पर मैंने गार्डनिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। सबसे इतना प्यार मिला और सभी ने इतना इनकरेज करा कि मैं गार्डनिंग के सफ़र में आगे बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि मेरे आस पड़ोस वाले, मेरे रिश्तेदार, हर कोई जो आता है वो मुझसे पूछता है अपने पौधों के बारे में और मुझसे सलाह भी लेना चाहता है। 1 साल पहले तक तो मुझे पौधों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, ना ही मुझे कुछ पता था कि किसका नाम क्या है। और अब 1 साल के अंदर ही अंदर लोग मुझसे सलाह ले रहे हैं। ये सब देखकर तो मैं आपको बता नहीं सकती। इस समय मैं तो 7वें आसमान पर अपने आप को महसूस करती हूँ। ये सफ़र मैंने सिर्फ 2 गमलों से शुरू किया और आज लगभग 500 गमले हैं मेरे पास। Thank you so much to IHS Society and I'm very blessed to be the part of it. Thank you. A quick and hassle-free flower arrangement at home without using a pin or a styrofoam. All you need is a vase which is already there in your home and a twig that fits into it. Insert the twig into the vase so that it stays firm. We have used the stem of variegated hibiscus and chlorophytum. Just use your imagination, play around and arrange them together to get a visually appealing and aesthetic flower arrangement in a matter of minutes. Last year I got these plants in my empty window. Some of them were gifted, some of them I propagated with my father, some were brought at the Indraprastha flower show, and since then I have made a strong connection with these plants. They make me feel happy every morning I get up, and since then they have been my roommates.
इज कॉल्ड कोकेबाना, क्योंकि दिस इज द हैंगिंग इकेबाना, इसलिए इसको कोकोबाना कहते हैं। ऐसे कोकोडेमा हैंगिंग होता है, ऐसे ये भी इसे हैंगिंग। दिस इज स्मॉल कैंडल स्टैंड, उस कैंडल स्टैंड को मैं उसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ये क्लोरोडेंड्रॉन की मेरे पास 2 फ्लोरेट्स निकली थी, ये मैंने इसमें लगा दी हैं। और ये रसीलिया के 2 ब्रांचेस थी मेरे पास। आजकल पेंडेमिक में फ्लावर्स किसी को बुलाना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये थी बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बस जस्ट टू गिव कलर टू द अरेंजमेंट मैंने ये थोड़ी सी लगाई हैं। बस पेंडेमिक में सबके मूड जो हैं बहुत ऑफ हो जाते हैं, बहुत ग्लूमी रहते हैं। जस्ट टू लिफ्ट एंड बूस्ट द मूड, ये छोटा सा अरेंजमेंट आजकल छोटे छोटे मैं करती रहती हूँ। तो आज थोड़ा सा ये डाल रही हूँ, देखिए आपको पसंद आएगा। बाकी फिर 2-3 दिन में फिर एक और अरेंजमेंट बना के फिर डालूँ। ठीक से, धन्यवाद। एक थोड़ा सा एक मिनट I must have got my love for plants from my mother, who had a beautiful front lawn and an equally amazing kitchen garden with fruit trees, etc. at the back. Living in Delhi, one doesn't have the luxury of so much space, but I have tried to have greens around me, from the entrance to the view through the different windows. I love desi flowers like champa, mogra, Raat Ki Rani, gulab, etc. Equally, I love my greens, my palms, ferns, etc. Bougainvilleas are my all-time favorites. I admire them for their hardiness and no fuss attitude. I like to have little pop-ups of green on my bookshelf, my favorite corner in the TV room, on the side table, even in the washroom. Though I have always loved plants, but it is in pandemic time I realized that it wasn't I who was looking after them. It was these beauties who were nurturing me, saving me from falling into a deep dark hole of despair. It is in this year that my husband and kids too suddenly started taking ownership of the plants. Till then it had been Mama's plants. My favorite? Yes, this plant of baby watermelons which took root on its own. It brings a smile to my face every time I see it.
सभी चीजें कृत्रिम है और प्रकृति की एक कला है। मैं एकता कालरा गार्डनिंग को लेकर आप लोगों से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है और ये शौक मेरे अंदर मेरी मम्मी से आया है। हमने बचपन से ही उन्हें गार्डनिंग करते देखा है। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था और उस छोटी सी जगह में बहुत खूबसूरती से पौधों को लगाया करती थी, उनका ध्यान रखा करती थी और उन्हें देख देख कर हमारे अंदर ये शौक पैदा हुआ और काफी साल से मैं भी घर में पौधे अपने गमलों में लगाती हूँ। जिस प्रकार आप पौधों की खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी आपको महसूस करते हैं, आपको फील करते हैं। गार्डनिंग एक मेडिटेशन है जो मुझे खुद एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर ले जाती है। गार्डनिंग करने से आपका मन, आपका मस्तिष्क एकदम स्वस्थ रहता है। आप थोड़ा सा टाइम अगर सुबह उठ के इन पेड़ पौधों के साथ बिताएंगे तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक था लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ा कम था, नॉलेज थोड़ी कम थी। मैंने IHS को ज्वाइन किया है, तब से मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। मुझे बहुत सी चीजें नई नई सीखने को मिली। घर में कैसे मैन्योर बनाया जाता है, अब मैं अपने पेड़ पौधों के लिए घर में खाद खुद बनाती हूँ। उनकी देखभाल कैसे की जाती है, मुझे नए नए आइडियाज पता चले। नए लोगों से जुड़ी मैं, जिनसे जुड़कर उन्होंने कुछ मुझसे अपने आइडियाज शेयर किए, कुछ मैंने आइडियाज शेयर किए। इस तरह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं पूरी IHS टीम को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।
नमस्कार, मेरा नाम सुनीता यादव है। मैं काफ़ी समय से अपने घर पर सब्जियां, सलाद और कुछ फूलों को उगा रही हूँ। पहले तो ये सारे काम मैं अपनी बालकनी में, गमलों में, छोटे छोटे पॉट्स में होल करके, डिब्बों में मिट्टी डाल के बस उसमें मेथी डाल दी, पुदीना डाल दिया या फिर पालक को थोड़ा सा डाल दिया। इस तरह से मैं सब्जियां उगाती थी। लेकिन अब 7-8 साल से मेरे पास एक छोटा सा गार्डन है प्रीत विहार में, जिसमें कि मैं अपने परिवार के लिए काफ़ी कुछ सब्जियां उगा लेती हूँ। ज़रूरत की हरी सब्जियां तो सभी उगा लेती हूँ मैं। तो इन सब्जियों में जैसे पालक, मेथी, सरसों, मूली, चौलाई, शलगम, गाजर, चुकंदर, ऑलमोस्ट सब सब्जियां सर्दियों की, बैगन, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सब सब्जियां बहुत आसानी से उग जाती हैं। कुछ सब्जियां थोड़ा समय ज़्यादा लेती हैं, कुछ कम लेती हैं, लेकिन फिर भी आसानी से उग जाती हैं। और अब गर्मी आने लगी है तो गर्मियों में हम अभी भी सब्जियां डाल सकते हैं।
कितने प्यारे फूल खिले हैं, बगिया तो महक ही रही है, मन को भी महका रही है। इन फूलों को छूकर ऐसा लगता है जैसे मन का कोना कोना खिल उठा हो। सभी को मेरी नमस्ते। मैंने अपनी बगिया में तरह तरह के फूल लगाए हुए हैं, सब्जियां लगाई हैं, ग्रीन्स लगाए हैं, हर्बल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूटिंग प्लांट्स, न जाने क्या क्या लगा रखा है। और पहले भी मैं करती थी बगिया में अपनी काम, लेकिन जब से मैं IHS से जुड़ी हूँ, किचन गार्डन से जुड़ी पहले, फिर मैं IHS से जुड़ी, और इतना कुछ मुझे सीखने के लिए मिला। किस तरह से होम कंपोस्टिंग होती है, बायो एंजाइम बनता है, इन सब का क्या यूज़ है। अभी तक तो केमिकल्स यूज़ कर रही थी मैं। इस 1 साल में जब से IHS से जुड़ी हूँ, तब मैंने सीखा है कि हम घर में कैसे पेस्टिसाइड बना सकते हैं, किस तरह से लिक्विड मैन्योर बना सकते हैं। और आज मैं जितने भी पौधों में कीड़े लगते हैं, हर चीज़ के लिए होम मेडिसिन बनाती हूँ, अपने किचन में ही सब कुछ तैयार करती हूँ। इतना कुछ सीखने के लिए मिला है। और मेरी एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, मैं अपने पौधों के साथ इतना फैमिलियर फील करती हूँ कि कई बार तो मेरी छोटी बेटी कहती है, मम्मा अगर आपको अपने बच्चों से फुर्सत मिल गई हो तो हमें भी कुछ खाने के लिए दे दो। तो इतना ज़्यादा इनसे लगाव हो चुका है आज मुझे पौधों से। मैं कहीं बाहर जाती हूँ, अगर मॉर्निंग में एक रात कहीं रुकी, नेक्स्ट डे आई, या मॉर्निंग जाके लेट नाइट आई, तो सबसे पहले मैं अपने पौधों में जाके देखती हूँ, घर का लॉक भी नहीं खोलती, और ये देखती हूँ सुबह इस फूल पर, पौधे पर 4 कलियाँ आई थी, अब कितनी हैं, कोई टूटी तो नहीं या कोई ऐड ऑन हुई है। और इतना दिल खुश होता है उन्हें देखकर, जब मैं ये देखती हूँ कि इसमें मैं सुबह 4 कलियाँ छोड़ के गई थी, रात को फूल खिल गए हैं, या 4 कलियाँ थी, रात को 8 कलियाँ हो गई हैं। सही से दिल से ये मैं कहना चाहती हूँ कि फूलों के बीच में, पौधों के बीच में, ग्रीनरी के बीच में रह के जो सुकून हमें मिलता है, वो शायद हमें किसी भी भौतिक सुख में नहीं मिल सकता। और थैंक्स टू IHS के वहाँ पर कृष्णा जी और रचना जी और सभी से इतनी नॉलेज मिल रही है, इतना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। इतनी बास्केट्स बनाने का तरीका, इतनी बॉन्जाइज भी मैं बना रही हूँ, और हर चीज़ में अब होम पेस्टिसाइड में यूज़ कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। Good things come to those who wait, and after 5 years, that's just what this beautiful little plant has done. Thank you, ornamental mini pineapple. Hello all, hi. This is Rupika Anand. I'm from Organic Theo, and I'm just going to show you our farmland in Bulandshahr, Shikarpur. This is our agriculture piece of land in शिकारपुर। ये हमने 6 एकड़ में लीज पर लेकर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं इस पे। और ये थोड़ा सा ओवरऑल आपका लुक दिखा देती हूँ मैं। ये पुदीना, ये धनिया, ये हमारी वर्मी कंपोस्ट बन रही है। ये पीछे हमारे कॉलीफ्लावर्स, ब्रोकलीज, पर्पल कैबेज, अनियंस, ये सब उग रहे हैं। ये हमारे आम के भी कुछ पेड़ हैं जिसमें ऑलरेडी नए पत्ते आ गए हैं, इसका मतलब द मैंगोज फ्रूट विल श्योरली कम। ये हमारे कुछ टब्स हैं जिसमें जीवामृत और बाकी नेचुरल चीज़ों से जिससे खेती होती है, मट्ठे से, गुड़ से, वो प्रिपेयर हो रहे हैं। ये केल लीव्स और ब्रोकली है। This is all the lettuce leaves which we have grown. This is under the shade of the tree. If you can see this mango tree, which gives it coolness, and because it's now summertime, meaning a lot of heat, so to retain these lettuce leaves we need to put it under the shade. This is Swiss chard leaves. This is all the purple cabbage which will soon pop up.
Again, here it is cabbage plus cauliflower and broccoli. This is all the cabbages. ये सारी पत्ता गोभी, all organically grown, all grown with the help of all the natural things like Jeevamrit, like matha, like gur, like cow dung, as I showed you the vermicompost made out of it. ये सब गाजर है, ये सब मूली है, लाल मूली, सफ़ेद मूली, plus there is one variety round Croatian मूली. This place is getting ready for bhindi, specific variety of bhindi, लाल भिंडी. ये भिंडी बहुत ही अच्छी मानी जाती है for pregnant ladies and lactating mothers, as it has some kind of a nutrient which is good for the brains of the child. ये जो लंबी सी आप घास देख रहे हैं, घास जैसा लंबा सा, दिस इज ऑल फ्लेक्स सीड्स. पालक के बीज बनकर तैयार हो रहे हैं. These are all the pods of baby corn. If you can closely see with the hair, these are all small baby corns. This is all the baby corn which I just showed you. This is from the other side, and here is all that corn, that sweet corn. ये सब भी उग रहा है अभी. It would be ready in a week's time. ये सब garlic लगा हुआ है. This is all garlic in our farm. Look, till a huge distance we have grown garlic. And if I can give you the view of the khet, I'm standing in the middle of the khet. This is the left side. ये पीछे सारा पहले मस्टर्ड है, सरसों, फिर चना है, फिर ये लहसुन है, फिर उसके पीछे प्याज है, ये सब मेथी है, पीछे फिर सरसों है, और ये सब हमारी गेहूं है. This is all the चना which we are growing. इसमें अच्छे से फूल आ रहे हैं, और इसमें अब छोलिया और उसके बाद काला चना देसी उगेगा. This side is all सरसों. सरसों के फूलों के बाद फिर वो उसकी बीन्स टाइप बननी शुरू हो जाती है, जिससे सरसों का तेल बनता है. और सरसों वैसे भी जो ड्राइड सरसों है वो बिकती है. Like if you can see, these are small ones right now. This will become big and we can have सरसों का तेल. We have both the categories. This is getting dried up. ये थोड़ा सा green है, ये dry हो रही है सरसों, और ये दोनों पीली और काली दोनों सरसों हमारे पास है. ये सब आलू हैं जो हमको निकालने हैं. Within 10 to 15 days they are all ready to be out, and we need to cold storage it as soon as possible, so that पूरे साल तक ये आलू हम लोग कंज्यूम कर सके. This is again getting ready for भिंडी, तोरी, घिया, टिंडा, खरबूजा and तरबूज. वर्षा जरीवाला. हमने 2013 में फार्म लिया
और हमने उसमें गेहूँ उगाए, चावल उगाए और फिर हमने सोचा कि एक हम गौ पालन करें, क्योंकि आजकल कोई भी चीज़ हमें शुद्ध नहीं मिल रही है। तो हमने गौ पालन के लिए सोचा और हमने गाय खरीदी और आज हमारे पास छोटी बड़ी 15 गाय है हमारे पास और उसमें एक नंदी महाराज भी है। हमारे पास सारी गाय गिर नस्ल की है, तो उसके खाने पीने का भी पूरा ध्यान हम रखते हैं। उसका हरा चारा भी हम खुद ही उगाते हैं और गायों के होने के कारण इसके गोबर और गौमूत्र में से हम घन जीवामृत और वर्मी कंपोस्ट खाद भी खुद ही बनाते हैं। महीने पुरानी छाछ और गौमूत्र को मिला के महीने में 2 बार छिड़काव करने से पौधों को रोग मुक्त कर रख सकते हैं। और हमें बस उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये छिड़काव हमें पूर्णिमा की रात्रि और अमावस्या की रात्रि से पहले ही करना चाहिए। हम पूरी खेती जैविक तरीके से ही करते हैं। घर में उपयोग में आने वाली सारी सब्जियां हम खुद ही उगाने की कोशिश करते हैं। घर में उगी हुई सब्जियां जहर मुक्त होती है, रासायन मुक्त होती है, स्वाद में भी खूब अच्छी होती है। जब मन चाहे तब उसका आनंद ले सकते हैं। परिवार को भी हम निरोगी रख सकते हैं और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। Hello, this is Geet Raheja. I am an active member of IHS group और I am feeling very blessed to join this IHS family. IHS family ने बहुत कुछ सिखाया हमें और मैंने अभी लास्ट ईयर ही मैंने फरवरी में ज्वाइन करा था और उसके बाद कभी हमारी ऐसे फिज़िकल मीटिंग तो कभी हुई नहीं, तो बट ऑनलाइन जूम के थ्रू और वेबएक्स मीटिंग्स के थ्रू बहुत कुछ हमने सीखा और जैसे कि एंजाइम्स बनाने और बहुत कुछ मैंने ट्राई भी करा लॉकडाउन में। तो अब इस बार मैंने एक्चुअली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो मुझे कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना अच्छा लगता है। तो इस बार मैं मटर के साथ कुछ ट्राई कर रही हूँ। तो मटर की सब्ज़ी तो सब खाते हैं, मटर तो एक्चुअली विंटर्स में सबका फेवरेट है, बट उसके छिलकों के साथ मैंने कुछ ट्राई करने की सोची क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और भी ज़्यादा है, मटर से भी ज़्यादा है। विटामिन सी है उसमें, विटामिन ई एंड पी पॉड्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फॉलिक एसिड टू। तो इसलिए मैंने सोचा कि मटर के छिलकों से सूप बनाया जाए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो हियर्स माय रेसिपी। हाफ इंच जिंजर, 5 to 6 pieces garlic, 1 onion, 2 potatoes, 4 tomatoes and peels of peas। मटर की सब्जी तो हमने बहुत बार सुनी होगी, पर मटर के छिलकों का सूप आज मैं बना के दिखा रही हूँ। तो इनको हमने इस तरह से पील करना है, यहाँ से इस एंड से लेके इस तरह से। ओके, पहले हमने ये वॉश कर लिए हैं और फिर इनको इस तरह से पील करके हम ये करते जाएंगे। मैं आपको पील करके दिखा रही हूँ, इस तरह से हमने करना है। ओके, बस इसके 2 पीसेस किए एंड दैट्स इट। और हम जो इस तरह के है ना, जो थोड़े पुराने मुरझाए होंगे, इनको हम नहीं यूज़ करेंगे, इनको हम ऐसे ही थ्रो कर देंगे। जैसे ये हैं, इनको हम ऐसे ही थ्रो कर देंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट मेकिंग द सूप। अब इसमें हमने पील्स डाल दिए, देन जिंजर गार्लिक, इसको आप चाहें तो कट कर लें, नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। एंड नाउ अनियन, potatoes and in the last tomatoes. Oh, in the last is water. वाटर
की क्वांटिटी मैंने मेजर नहीं करी है, वो हम अंदाजे से ही डाल सकते हैं। एंड 1 टीस्पून सॉल्ट, एक्चुअली सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड देन दैट्स इट। कवर द लिड। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट विसल आने तक हाई फ्लेम पे, उसके बाद इसको सिम पे कर देंगे और 4 से 5 विसल्स आएंगी तो हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसको ओपन किया और देखिए ये इस तरह से है। फिर इसको हम अभी ब्लेंड करेंगे। इसका कलर इतना अच्छा नहीं आएगा, बट हाँ थोड़ा लाइट ग्रीन आएगा। इसको अब हम छान लेंगे। तो अब हम इसको छान लेते हैं। ये कुछ इस तरह से आएगा। ये छाना हुआ सूप है। अब इसको हम फिर से गैस पे रखेंगे और इसमें डालेंगे फाइनली चॉप्ड कैरेट्स, फाइनली चॉप्ड मशरूम्स। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। And you can also add salt if needed. And the soup is ready. ये हैं वाटरमेलन पील्स। वैसे तो वाटरमेलन खाने में बहुत अच्छा लगता है, बट इसकी जो छिलके की न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी भी होते हैं। और हम इसको इसलिए नहीं खाते क्योंकि इसका कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस होता है। बट इसकी आज हम सब्जी बनाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही इसका ग्रीन पार्ट है वो हम ऐसे पील कर देंगे, क्योंकि जो ये ग्रीन पार्ट है उसको कुक करने में बहुत टाइम लगता है और ये बहुत हार्ड होता है कुक करने के लिए, इसलिए हम इसको पील कर देंगे। इसका खाली ये वाइट पार्ट है, ये है हल्का सा अगर रेड भी आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, तो उसका भी बहुत अच्छा उसमें फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी हम खट्टी मीठी सब्जी बना रहे हैं। ओके, इसको हम डाइस करेंगे इस तरह से। ये सारे पील्स को हम इस तरह से कट कर लेंगे। और ये मैंने ऐसे कट कर लिए हैं। प्रेशर कुकर लिया और इसमें 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला, इसको हीट करा जब तक कि ये अच्छी तरह गर्म ना हो जाए। देखिए बिल्कुल गर्म हो चुका है, इसकी फ्यूम्स आ रही हैं। तो इस पॉइंट पे हम डालेंगे हींग, ये मस्टर्ड सीड्स, एंड देन हल्दी, तो थोड़ा सिम पे कर लेंगे। जीरा, मिर्च, नमक, एंड देन लिक्विड। और ये इसके बाद तो थोड़ा सा साथ साथ ही डाल देंगे हम ये मेथी सीड जो हमने सोक करके रखे थे, विद वाटर और विदाउट वाटर, इसका चाहिए। इसको हम 2 मिनट के लिए सौटे करेंगे और फिर 3 से 4 टेबलस्पून वाटर डाल के इसकी लिड को कवर कर देंगे।
इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको प्रेशर कुक करेंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। एक्चुअली जैसे हम वो लौकी बनाते हैं ना, उतना ही समय लेगा ये भी, उतनी देर में ही ये कुक हो जाएगा। अब ये देखिए ये इस तरह से लगी है, बहुत अच्छी लग रही है। तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे जैगरी थोड़ी सी एंड अमचूर, क्योंकि हम इसको खट्टा मीठा बना रहे हैं ना, क्योंकि पूड़ी के साथ बहुत ही यमी लगता है। और हम इसको मैश करेंगे, फाइनली मैश कर देंगे इसको एंड तब तक इसमें जैगरी और अमचूर भी मिक्स हो जाएंगे। एंड हियर इट इज, यमी तरबूज के छिलके की सब्जी इज रेडी। IHS के अब तक के 23 साल के सफ़र में कई शख्सियत इस मुहिम में साथ जुड़ी। Notable amongst them are the luminaries who graced our functions as judges. Each one of them has been an immense source of support, encouragement and guidance. They have been our mentors, teachers, challenged us to raise the bar, applauded and appreciated us. उन्होंने हमें अपनी पहचान बनाने का साहस दिया। We at IHS salute each one of them. On this occasion, two of our esteemed judges, Tara Rangamji and Satish Mathurji, have sent us messages of good wishes. Tara ji has been a guiding spirit. She inspired us to start a souvenir. Satish Mathurji, he has helped us when we needed it the most. Over to them. I congratulate Indraprastha Horticulture Society for working towards betterment of environment and making Delhi green and eco-friendly, and a great teamwork by the members and everybody in East Delhi. Thank you. The Horticulture Indraprastha Society is doing an exceedingly nice job in the country. I must say their contribution to the cause of environment, horticulture, flower shows is tremendous. One of the finest in the country. Each and every member is dedicated. Devotion is the basic of this society. Rachna Jain is the pioneer. I must congratulate her and her team. With all the best, all for you all.